التهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آپ سے تمام سے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبورہ نکہت پروین بنت غلام رسول صاحب کی روح کا احسان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نے انسان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، اور پروردگار عالم نے جو صلاحیتیں اس انسان کے وجود میں رکھی کسی میں نہیں رکھی. پروردگار عالم نے جتنے صلاحیتوں سے اس انسان کو نوازا کسی مخلوق کو نہیں نوازا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کشف کریں، اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کریں. اور جس طریقے سے میں نے ایک گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا اور میں ایک مثال دی تھی کھجور کا جو ایک پھل ہوتا ہے جسے خرما کہا جاتا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ کھجور کے لیے اگر یہ درخت بننا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی گٹلی کو زمین میں دفن ہونا پڑے گا، تبھی جا کر کے یہ درخت کی صورت کو اختیار کرے گا. لہذا ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنی انا کو فنا کر دیں، اپنی اس میں کو دفن کر دیں. اور اتنا یاد رکھیے ماہ وقت رمضان ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یوں تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ پورے سال ہی ہوتی ہے، مگر برالی رمضان کا مہینہ ہے کہ جو کہ عبادت سے جو ہے بھرپور ہے. جتنا ہو سکے اتنا جو ہے انسان زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے استفادہ کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی اپنے سر کو، اپنی جبیں کو پروردگار کی بارگاہ میں خم کر دیتا ہے، یا بلکہ یہ کہوں کہ جو بھی اپنے سر کو پروردگار کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے تو پروردگار عالم ان کے سروں کو بلند کر دیتا ہے. اور جو سر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ سر پھر کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتا. جو سوچ سمجھ کر پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتبار کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو میرا عزیز اس کی نظر میں پھر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے. اس کی نظر میں ذات واجب یعنی پروردگار ہی بڑا ہوتا ہے. مگر جو بغیر سوچے سمجھے، جنہیں یقین ہی نہ ہو کہ واقعی اللہ بڑا ہے کہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے لیکن بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس پر یقین کیے ہوئے کہتے ہیں، تو ان کے لیے کبھی امریکہ بڑا ہوتا ہے، کبھی اسرائیل بڑا ہوتا ہے. مگر چونکہ جس نے علی کے دامن کو تھاما اور جس نے سوچ سمجھ کر کے اللہ کی کبریائی کا اعتراف کیا، تو میرا عزیزوں اس کے لیے صرف اللہ ہی بڑا ہے، اس کے لیے امریکہ اسرائیل بڑے نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
لہٰذا میرا عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ انسان کمال کی جستجو میں رہتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ ہمیں بلندی مل جائے, ہمیں ارتفاع کمال مل جائے, ہمیں بلندی حاصل ہو جائے. تو میرے عزیزوں کرنا یہ ہے کہ صرف بلند افراد کے دامن کو تھام لو, بلندیاں جو ہے تو ملتی چلی جائیں گی. کسی کے پاس ایسے بلند افراد ہو یا نہ ہو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, مگر الحمدللہ ہمارے پاس 14 افراد ایسے ہیں. کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس 14 ہستیاں ایسی ہیں, اور جس نے بھی ان کے دامن کو تھاما وہ بلند ہوتا چلا گیا. اسے بلندیاں ملتی چلی گئیں. جس نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے دامن کو تھام لیا وہ انسان جو ہے کمال تک پہنچ گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بلندیاں ملے, ارتقاء اور ارتفاع کمال حاصل کر لیں, تو میرا جو اس بات کی ہے کہ صرف اور صرف ہم جو ہے اپنے مولا کے دامن کو جو ہے تھامے رکھیں, ان سے اپنے آپ کو جدا نہ ہونے دیں. اگر ہم نے ان کے دامن کو تھام لیا تو یقیناً میرے عزیزوں ہمیں بلندیاں ملتی چلی جائیں گی. اور کیوں نہ ہو میرے عزیزوں, ہم نے پوری تاریخ کو پڑھا تو ہم نے یہی دیکھا کہ یہی 14 ذوات مقدسہ ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کا سر کسی کے سامنے خم نہیں ہوا, مگر ہم نے یہ دیکھا کہ علی جیسا جس کا عظیم بندہ تھا, جو کہ خود بلند تھا, جو کہ خود اعلیٰ تھا, بلکہ جس کی وجہ سے بلندیاں بلند تھی, جس کی وجہ سے میرے عزیزوں عزتیں تھی, ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا سر کسی کے سامنے نہیں جھک رہا تھا, مگر ہم نے ایک دن منظر دیکھا کہ اس نے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا. ہم سمجھ گئے کوئی ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے, جس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا جائے. ہم سمجھ گئے کہ جس پروردگار کا علی جیسا عظیم بندہ ہو, خود پروردگار کتنا عظیم رہے گا. لہٰذا میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انا کو فنا کر دیں, اپنی اس میں کو دفن کر دیں. اور میرے عزیزوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کھجور کا درخت اگا دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کھجور کا درخت کا جو ہے بیج چاہیے, وہی خرما اس کی گٹھلی چاہیے. پلاسٹک کے بیج سے آپ درخت نہیں اگا سکتے. یا آپ جو ہے لوکی کے بیج لے لیں اور آپ کہیں کہ ہم ان سے خرمے کا جو ہے درخت اگا دیں گے, کھجور کا درخت جو ہے اگا دیں گے, تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. نہیں, وہی بیج چاہیے اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, تبھی یہ درخت بنے گا, تبھی یہ خرمے کا درخت بنے گا. جب آپ خرمے کے بیج کو زمین میں دفن کر دیں گے, زمین میں دبا دیں گے. اللہ نے بھی انسان کو بے پناہ صلاحیتیں دی, اور اسی لیے پروردگار عالم نے جب پہلا انسان بنایا جس کو جناب آدم کہا جاتا ہے, تو میرا عزیز پروردگار نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یا ہم نے زمین پر خلیفہ بنا دیا. تو میرا عزیزوں وہیں پر دوسرے خلیفہ کا اہتمام کیا, اور پروردگار نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا. اور اس کے بعد 2 شرطیں رکھی, یعنی پروردگار بتانا چاہ رہا کہ دیکھو اتنا یاد رکھو, اس مقام خلافت کو ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے, تخت ملے یا نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہائے برادروں, تخت چھن جائے تو چھن جائے, مگر مقام خلافت تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور آپ نے دیکھا میرے عزیزوں تاریخ تو آپ کے سامنے ہے, آپ تو سنتے رہتے ہیں. میرے عزیزوں علی ابن ابی طالب سے ظاہری اعتبار سے تخت کو چھین لیا گیا, تخت کو سلب کر لیا گیا, مگر مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے تخت کو سلب کر لو گے, حکومت کو سلب کر لو گے, سلب کر لو, ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے, گوشہ نشین ہو جائیں گے, مگر اتنا یاد رکھو جب بھی وقت پڑے گا یہی الہی خلیفہ یاد آئے گا. جب بھی وقت پڑے گا یہ گھٹنے ہماری ہی جانب مڑیں گے, یعنی محتاج ہمارے ہی رہو گے. اور تاریخ لکھے گی کہ 70 مرتبہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے لولا علی ہلاک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو گئے ہوتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو ہر انسان خلیفہ ہے زمین کے اوپر, تخت ملے یا نہ ملے.
मगर ये मुकाम अल्लाह ने हमारे अंदर रखा है। परवरदिगार कह रहा है, पहला इंसान खल्क किया परवरदिगार ने तो कहा कि हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, मगर इस खिलाफत के लिए दो चीजें हैं कि जिनका हमें ख्याल रखना है। परवरदिगार ने कहा, दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़ फहकुम बैन अन्नास बिल हक़ वला तत्तबिल हवा। और दाऊद इतना याद रखो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ये मुकाम खिलाफत सामने आए, तुम्हारा ये मुकाम खिलाफत बाकी रहे, तो तुम्हें दो चीजें करनी है। करना क्या है कि जब भी तुम फैसला करना तो ये देखना कि हक है कि नहीं है। आए मेरे दोस्तों, हक किधर है ये देखना, और जब हक आ जाए तो फैसला करना। मेरे अजीजों, फैसला करने वाला कोई भी हो, मैं आम बात कह रहा हूं, चाहे हम हो या आप हो, मगर फैसला करने से पहले ये देखना है कि हक है कि नहीं, हक किधर है। जब हक आ जाए तो फिर फैसला किया जाए। हम ये ना देखें हक फैसला करने से पहले ये तो हमारे खानदानी है, अगर हमने फैसला कर दिया तो ये जाहिर सी बात नाराज हो जाएंगे। अब हम किसी के जाकर के चाय पी लेते हैं तो हमें इस बात का भी खौफ है कि अगर हमने हक बयानी से काम लिया तो एक कप चाय चली जाएगी। यह है, यानी ईमान इतना सस्ता हो गया मेरे अजीजों के, एक कप चाय बिक जाता है। एक कप चाय में चूंकि उनकी बैठक में जाकर के बैठ जाते हैं तो लिहाजा जो है वो एक कप चाय नसीब हो जाती है। अब अगर हमने इनकी बात ना कही तो जाहिर सी बात है नाराज हो जाएंगे, और जब नाराज हो जाएंगे तो एक कप चाय जो है वो छिन जाएगी, तो चाय जो है वो नहीं मिलेगी। तो लिहाजा मेरा अजीजों, हमें ये नहीं देखना है, नहीं अपना हो या गैर हो, रिश्तेदार हो या बेगाना हो, नहीं कोई भी रहे, हमारा भाई क्यों ना हो, नहीं हमें वही कहना है जो हक है। हमें किसी के नाराज होने से और राजी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राजी हो या ना हो, नहीं हमें तो ये देखना है कि जो हम कहने जा रहे हैं इससे अल्लाह राजी होता है या नहीं राजी होता, इसका रसूल राजी होता है या नहीं होता, शहजादी राजी होती है या नहीं होती। मेरे अजीजों, अगर हमने ऐसा कर लिया और हमने फैसला करने से पहले ये देख लिया कि इससे अल्लाह राजी होगा या नहीं, रसूल राजी होंगे या नहीं, तो इतना याद रखिएगा मेरे अजीजों, जन्नत पक्की है, जन्नत 100% आपकी और हमारी है अगर हमने ये देख लिया। लेकिन अगर हमने ये देखा कि खानदानी है तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने नहीं कही इनकी जैसी बात, इसलिए चाहते हैं बुलवाना, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है बिगाड़ हो जाएगा, ताल्लुकात पे फर्क पड़ेगा। तो क्या किया जाए, तो जो है वो निगल लिया जाए और बातिल का साथ दिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, हक का साथ दे। अगर हम देखें तो हक देखें, बोले तो हक बोले, सुने तो हक सुने। अगर हाथ हमारा उठे तो हक के लिए उठे, हक की मदद के लिए। अगर हमारे कदम बढ़े तो हक की जानिब बढ़े, ना कि बातिल की जानिब। तो ये हमें देखना है कि आखिर अगर मेरे अजीजों हम हक का साथ दे रहे हैं, हक के लिए हमारी जुबान खुल रही है। और एक जुमला कहूं, तुम्हें बात आ रही है तो अर्ज करता चलूं, इतना याद रखिएगा, ये फर्श अज़ा, ये मजलिस में शोदा, ये याम अज़ाए फातिमिया मेरे अजीजों इंसान को जरी बनाते हैं, इंसान को शुजा बनाते हैं। मेरे अजीजों इतना याद रखिएगा, अय्याम अज़ा मनाने का हक भी उसी इंसान को है जिसके अंदर हक गोई की ताकत मौजूद है। जो हक को हक ना कह सकता हो उसे हकदारी करने का कोई हक हासिल नहीं होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। याद है मेरे अजीजों, हक को हक कहिए। और ये तो माह वगैरह रमजान चल रहा है, ये एक महीने की तमीन इसीलिए है, इसीलिए हमारे लोग कहते हैं कितने रोजे रखे आज, तो एक दिन में एक ही रोजा रखा जाएगा ना, लेकिन क्या कहते हैं कितने रोजे रखे, यानी कई रोजे रखे जा सकते हैं। बाद लोग सिर्फ खाने का रखते हैं, पेट का रोजा होता है, खाना जो है वो ममनू, खाना जो है वो जायज नहीं है क्योंकि रोजे से है। लेकिन मेरे उलमा क्यों कहते हैं, इसलिए कि आंखों का भी रोजा है, हमारी जबान का भी रोजा है, हमारे कानों का भी रोजा है, हमारे हाथों का भी रोजा है, हमारे पैरों का भी रोजा है। यानी एक दिन में हम कह के रोजे रख सकते हैं। और हकीकी रोजा यही है कि हमारे हाथ से किसी को जो है कोई नुकसान ना पहुंचे, हमारे हाथ से जुल्म ना होने पाए। हमारी आंखें अगर देखें तो हक देखें, सही देखें, जिसका अल्लाह हुक्म देता है देखने के लिए। अगर हमारे कान सुने तो ये वही सुने कि जिसका आले मोहम्मद मुतालबा करते हैं। हमारी जबान पर अगर कुछ चीज आए तो वही आए कि जिसका परवरदिगार हमसे मुतालबा करता है। और जाहिर सी बात है कि
कि इस जिक्र अहले बैत से अच्छी कौन सी बात होगी? क्या आप और हम रोजे से हो, मैं सुना के सवाब हासिल करूं, आप सुन के सवाब हासिल कीजिए। तलवार पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस महीने में परवरदिगार ने कुरान को नाजिल किया और वो कुरान कुराने सामित है, और वहीं पर एक कुरान नातिक की विलादत भी हुई। तो जाहिर सी बात है कि कितना अच्छा हो कि हम जो है कुरान सामित को भी पढ़ें और कुरान नातिक को भी सुने, तो सवाब ही सवाब है बहरहाल दोनों चीजों में। तो ये ऐसा महीना है, लिहाजा हक सुनना है, हमें हक ही बोलना है और हक ही जो है वो कहना है, हक देखना है। अगर ये हो गया मेरा अज़ीज़ों, तो तैयार रखिए कि फिर हम जो है जन्नत से दूर नहीं रहेंगे, फिर हम जन्नत के मुंतजिर नहीं होंगे, बल्कि जन्नत हमारी मुंतजिर होगी, हमारी मुंतजिर होगी। यार क्या परवरदिगार ने कि करना यह है कि जब भी फैसला करना तो हक के साथ फैसला करना, ये देखना कि हक है कि नहीं है, और वला तत्तबील हवा और ख्वाहिशात नफ्सानी का इत्तिबा न करना। तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, ये नहीं देखना है, ख्वाहिशात इत्तिबा न करना नहीं। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो क्या होगा, फिर ये मुकाम खिलाफत सल्ब हो जाएगा, ये मुकाम खिलाफत छिन जाएगा, यानी फिर तुम खलीफा नहीं रह जाओगे। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि खलीफा बाकी रहे जमीन पर और हमारा ये मुकाम सामने आए, तो करना यह है कि जब हम फैसला करें तो हक देखें कि हक है या नहीं है, अपनी ख्वाहिशात का इत्तिबा न करें। मेरे अजीजों, ये खिलाफत दाऊदी है कि दाऊद फैसला करने से पहले ये देखें कि हक किधर है। मगर मेरे अजीजों, ये खिलाफत अलवी का इम्तियाज है। अली ये नहीं देखेंगे कि हक आ जाए और हक में मुंतजिर हो अली इब्न अबी तालिब, नहीं, ये खिलाफत दाऊदी है कि दाऊद इंतजार कर रहे हैं हक का कि हक आ जाए और हम फैसला सुना दे। मगर ये खिलाफत अलवी है मेरे अजीजों, दाऊद मोहताज है हक के कि हक आ जाए और फैसला करे। ये खिलाफत अलवी है, अली मोहताज नहीं हक के, हक खुद मोहताज अली इब्न अबी तालिब का कि मेरे अजीजों, हक ये देखेगा कि अली किधर है, दाऊद ही देखेंगे कि हक किधर है। चलो आप पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुकाम खिलाफत दाऊदी है कि दाऊद फैसला करने से पहले ये देखेंगे हक किधर है, मगर अली ये नहीं देखेंगे हक किधर है, नहीं, हक खुद ये देखेगा कि अली किधर है। और ये वजह है कि अल्लाह के नबी ने कहा अली माल हक वल हक़्क़ु मा अली, हक अली के साथ और अली हक के साथ। मेरे अजीजों, इस बार जो है कितने फिरके हैं, पैगंबर अकरम फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा सिर्फ, बाकी जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। या 73 होंगे या 73 हैं, पैगंबर की हदीस है ये। हर कोई अपने आप को कहता क्या, हम जो है वो जन्नती हैं, हम हक पर हैं, दूसरे को बातिल कहते हैं। हर एक का ये हाल है। तो मेरे पास हक है मामला, किससे पूछें कि आखिर ये हक है क्या चीज, किसे कहते हैं हक, कहां मिलेगा ये हक? तो मेरे अजीजों, किसी से ना पूछिए, जिससे पूछेंगे वो खुद हमारे और आपके जैसा है, क्या बताएगा? तो चलिए चलते हैं, पहले कुरान से पूछते हैं। कुरान तू बता, हक किसे कहते हैं, हक किस चीज का नाम है? तो हमने कुरान से पूछा तो कुरान ने कहा अल्लाह भी हक, रसूल भी हक, सिरात भी हक, हिसाब भी हक, मिजान भी हक, दीन भी हक, विलायत भी हक। परवरदिगार, जब ये सारी चीजें हक हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर तो मसला जो है बहुत ही सख्त हो गया। हर इंसान जो है अपने आप को हक कह रहा है, अब किससे पूछे? आइए चलते हैं हक के रसूल हक के पास और रसूलुल्लाह से कहें या रसूलुल्लाह आप बताइए कि आखिर हक किसे कहते हैं, कहां मिलेगा ये हक, क्या चीज है ये हक? तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के हदीस इरशाद फरमाई, अली माल हक वल हक़्क़ु मा अली, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। और अल्लाह के नबी यहां पर रुके नहीं, बल्कि अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और उठाने के बाद दुआ की, ए पालने वाले अल्लाहुम्मा अदिल हक्का
ऐसो दारा अली, ए परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ जाए। मेरे अजीजों, परवरदिगार की बारगाह में पैगंबर अकरम ने अपने हाथों को उठाकर दुआ की, परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। तो मेरे अजीजों, हक वहीं जाएगा जहां अली जाएंगे। हक अली का इत्तिबा करेगा, जहां जहां अली होंगे हक वहीं मिलेगा। तो मेरे अजीजों, इस हदीस की रोशनी में हम ये तो कह ही सकते हैं कि यानी अल्लाह का नबी ये कहना चाहता है कि जो कुछ भी हो, अगर नक्शे कदम अली पर हो तो हक है। अगर दीन हक है, नक्शे कदम अली पर है तो हक है। अगर कुरान हक है तो कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ हक है। मेरे अजीजों, इस रोशनी में अब मैं ये तो कह ही सकता हूं भाई, जिस मजहब में अली उस मजहब में हक, जिस मजहब में अली नहीं उस मजहब में हक नहीं। भाई जिस मिंबर पे अली उस मिंबर पे हक, जिस मिंबर पे अली नहीं उस मिंबर पे हक नहीं। भाई जिस मैदान में अली उस मैदान में हक, जिस मैदान में अली नहीं उस मैदान में हक नहीं। भाई जिस तरफ अली उस तरफ हक, जिस तरफ अली नहीं उस तरफ हक नहीं। भाई मेरे अजीजों, जिस दिल में अली उस दिल में हक, जिस दिल में अली नहीं उस दिल में हक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हक गरीबों का लिया भाई से नफरत की है, हक गरीबों का लिया भाई से नफरत की है। फिर ये कहते हैं इमामों से मोहब्बत की है। और आप गिरगिट की तरह रंग बदलते क्यों हो? हमने तो दुश्मन शब्बीर पर लानत की है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हक जो है वो उधर उधर जाएगा जिधर जिधर अली जाएंगे। परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली जो है वो जाए। तो हक जो है वो अली का इत्तिबा करेगा, जहां जहां अली जाएंगे हक जो है उनके साथ साथ जाएगा। हक जो है अली के पीछे पीछे रहेगा। मैंने कहा अल्लाह के नबी से, या रसूल अल्लाह, जरा जुमला सोच समझ के कहिए, इसलिए कि इस जमाने में कुफ्र का फतवा बहुत आसानी से लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर भी माज़अल्लाह कुफ्र का फतवा लगा दे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपने कहा है कि आपको उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। तो जाहिर सी बात है, कुरान तो अल्लाह को भी हक कहता है, कुरान तो आपको भी हक कहता है। तो इसका क्या मतलब है? यानी अल्लाह भी वहीं जाएगा जहां अली जाएंगे, है क्या? आप भी वहीं जाएंगे जहां अली जाएंगे, क्योंकि आप भी हक है, अल्लाह भी हक है। क्या नहीं? हमने अधूरा जुमला नहीं कहा, हमने पूरा जुमला कहा है। पूरा जुमला पढ़ो। हमने दुआ की अल्लाह के बारगाह में, हमने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अदिल हक्का है सो दारा अली, परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जिधर जिधर जो है वो अली मुड़ जाए। तवज्जो, जिधर जिधर अली मुड़ जाए। तो हमने जुमला मुकम्मल कहा है, हमने अधूरा जुमला नहीं कहा। अगर मैं ये कहूं कि सबको मस्जिद से जो है इमाम बारगाह से बाहर निकाल दीजिए, तो आप मुझे बाहर निकाल देंगे? है क्या मतलब है? नहीं, जिससे कह रहा हूं उसे यहां रहना है और मुझे भी यहां रहना है, बाकी सबको बाहर जाना है। याद अल्लाह के नबी ने जुमला ऐसा इस्तेमाल किया कि यानी मासिव अल्लाह व रसूल, जो कुछ है नक्शे कदम अली पर है तो हक है। यानी जुमला ऐसा कहा कि खुद को भी अलग किया, मैं भी जुदा हूं, अल्लाह भी जुदा है। याद, लेकिन उसके अलावा जो कुछ है वो अगर नक्शे कदम अली पर रहेगा तो हक रहेगा। लेकिन अगर अली को छोड़ करके है तो फिर ये कुछ भी हो सकता है मगर हक नहीं हो सकता। तो हक जो है वो अली के साथ और अली हक के साथ है। तो मेरा अजीजों, अब एक जुमला कहने को जी चाहता है। सन 40 हिजरी में अली कहां गए? कब्र में। तो अब कहां गया? कहां गया आप? कब्र में। क्योंकि अल्लाह के नबी ने तो यही कहा है कि अल्लाह परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ जाए। तो अली तो कब्र में चले गए, तो हक भी बाज़अल्लाह जो है वो कब्र में चला गया। और ये पूरी कायनात हक से खाली हो गई और पूरी कायनात के अंदर बातिल बातिल रह गया बस। क्या ये मतलब है? कहां गया आप? या तो कोई लाओ अली जैसा, हाय मेरे अजीजों, या तो लाओ कोई अली जैसा कि जिसके साथ ही हक रहे, जिसका हक इत्तबा करे। अमा किसी के पास हो या ना हो अली जैसा, अल्लाह ने हमें 11 और दिए अली जैसे। अमा वो
और होंगे जिनका सिलसिला अली पर खत्म हो गया। हमारा सिलसिला अली पर खत्म नहीं हुआ, अली से शुरू हुआ है। और आज भी एक है जो बौनवाने अली इब्न अबी तालिब पर्दे गैब में मौजूद है मेरे अजीजों, और ये वही है कि जब ज़हूर करेगा और मिंबर पर आकर के बैठेगा तो कहेगा जाल हक व जाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आया और बातिल चला गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कौन है? तशरीफ लाने वाले हैं, सितमगरों को ठिकाने लगाने वाले हैं, और जिन्हें पसंद नहीं है तबर्रुक के मजलिस, वो सब हराम ग़िज़ाओं के खाने वाले हैं। मोहम्मद वाले तो जाहिर सी बात है, तो ये कहिए कि हक जो है अली इब्न अबी तालिब के साथ दफन हो गया, या फिर लाओ कोई अली जैसा। अभी अपने अपने मुकद्दर की बात है कि तुम्हारा सिलसिला अली पर खत्म हो गया, हमारा सिलसिला तो अली से शुरू हुआ है। और आज भी कोई है जो अली जैसा है, जो पर्दे गैब में है, और जब आएगा और वो जिस मिंबर पर तशरीफ रखेगा और मिंबर कुफा पे बैठेगा तो कहेगा जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, हक आया बातिल चला गया, और बेशक बातिल को तो जाना ही था। ये है मेरे अज़ीज़ों, ये हक है। अगर हक को मुजस्सम कर दिया जाए तो क्या बनेगा? अपने वक्त में अली इब्न अबी तालिब बन जाए। अगर हक को मुजस्सम कर दिया जाए तो अपने वक्त में इमाम हसन बन जाए। अगर हक को मुजस्सम कर दिया जाए तो अपने वक्त में हुसैन इब्न अली बन जाए। और मेरे अजीजों, अगर हक को मुजस्सम कर दिया जाए जमाने में तो मेरे अजीजों हमारा और आपके बाद इमाम बन जाए। ये हक है। और इन्होंने अपने आप को जैसी जरूरत थी दुनिया के एतबार से, जमाने के एतबार से, वैसा अपने आप को जाहिर किया, वरना इनके यहां कोई फर्क नहीं पाया जाता। ये मेरे अजीजों, ये 14 के 14 अफराद बराबर हैं, मसावी हैं हर एक मैदान में। कोई इनमें जो है कमी जाती नहीं पाई जाती, सब बराबर है हर मैदान में। आप देखें मेरे अजीजों, ये वजह है कि एक शख्स था जो मौला के चाहने वाला, ख्वाब में देखा कि हमारी मस्जिद में अल्लाह के नबी आए हुए हैं। ख्वाब देख रहा है और अल्लाह के नबी के सामने जो है एक तवा रखा हुआ है खजूरों का। अब बात खजूर से शुरू हुई थी, खजूर पर बात जा रही है, और माह मुबारक रमजान चल रहा है, खजूर जरूर खाई भी जाती है, तो खजूरों का जमाना है। तो खजूर का तवा रखा हुआ है, सलाम किया अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी ने जवाब सलाम दिया, और अब अल्लाह के नबी ने एक मुट्ठी जो है खजूरें उठाई और दामन में डाल दी। और अब इन्होंने गिनना शुरू किया तो कितने दाने निकले? 18 दाने। अब हुआ ये कि ये भी 18 में लगे हुए थे। ख्वाब से जो है बेदार हो गए, परेशान। आखिर इसका मतलब क्या है? जब इंसान ऐसा कोई ख्वाब देखता है ना, तो पहली चीज जो जहन में आती है उसका नाम क्या है? मौत। सबसे पहले मौत आती है। अब इन्होंने ख्वाब तो देख लिया, अभी 18 दाने थे खुरमों के। अभी सोच रहे हैं कि 18 दिन जिंदा रहेंगे, 18 महीने जिंदा रहेंगे, 18 हफ्ते जिंदा रहेंगे, 18 साल जिंदा रहेंगे। क्या मतलब है इस बात का? कौन बताएगा? अब जाहिर सी बात है, जिसके घर की बात है वो बताएगा। हम और आप क्या बताएं? इस ख्वाब की क्या ताबीर है? जमाना गुजरता चला गया, अब जमाना आ गया अपने जमाने के 8वें अली का, और इसने सुना कि हमारे की मस्जिद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम जो है तशरीफ फरमा है। और न करीब है कि यहां से कूच कर जाए, चले जाए। बड़ी तेजी के साथ दौड़ा कि कहीं जो है वो फरजंदे रसूल चले ना जाए। लिहाजा चूंकि मैंने ख्वाब में देखा है तो इनसे बेहतर ताबीर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बात इनके घर की है। अब ये पहुंचे मस्जिद में। जैसे ही मस्जिद में इन्होंने कदम रखा तो अब हैरत की इंतहा न रह गई। जैसे अल्लाह के नबी को मेहराब में देखा था बैठे हुए, वैसे देखा पाया। वैसे ही पैगंबर अकरम के फर्जंद भी, 8 इमाम भी बैठे हुए। तबाक वैसा ही जैसे पैगंबर के सामने रखा हुआ खजूरों का भरा हुआ, वैसे ही 8 इमाम के जो है सामने भी रखा हुआ है। मेरा जो अंदाज से अंदाज मिल रहा था, किरदार से किरदार मिल रहा था, गुफ्तार से गुफ्तार मिल रही थी, रफ्तार से रफ्तार मिल रही थी। बैठकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम फरजंद रसूल,
आप पर सलाम हो या अपना रसूल अल्लाह, रसूल के बेटे। आप इमाम ने भी जवाब दिया वालेकुम सलाम। और अब एक मर्तबा एक मुट्ठी जो है खुरमे उठाए और इसकी जो है वो आगोश में डाल दिए, झोली में डाल दिए। इसने गिनना शुरू किया, फिर वही 18 दाने। फिर फौरन कहता है फरमाते रसूल थोड़ा सा और दे दीजिए और इजाफी कर दीजिए। तो मेरे अजीजों इमाम जवाब देते हैं कि अगर मेरे जदने ज्यादा दिया होता तो मैं भी ज्यादा दे देता। अगर मेरे जदने ज्यादा दिया होता तो मैं भी ज्यादा दे देता। मेरे पहचाने आपने, यानी इमाम बता रहे हैं कि पहचाने दुनिया कितना एक जैसे है। मेरे अजीजों वो ख्वाब देखा था, ये आलम बेदारी की बात हो रही है। मेरे अजीजों ख्वाब में कोई फर्क, ना बेदारी में कोई फर्क, ना उनके बैठने में कोई फर्क, ना इनके बैठने में कोई फर्क, ना उनके अंधेरे में कोई फर्क, ना इनके देने में कोई फर्क। वो उठा ले तो 18, ये उठा ले तो 18। मेरे अजीजों एक बात और बताऊं आपको, मेरे अजीजों किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। होता है कि नहीं होता भाई? किसी की जो है मुश्क की गिरफ्त में कम चीज आती है, किसी के में ज्यादा आती है। मगर मेरे अजीजों 150 बरस जमाना आगे बढ़ गया, जमाना डेवलप हो गया, जमाना तरक्की याफ्ता हो गया। मगर मेरे अजीजों 150 गुजरने के बाद, 150 बरस का जमाना गुजरने के बाद मेरे अजीजों इमाम ने बताया पहचाने दुनिया हम कितना एक जैसे हैं। अगर जहां 1.5 सदी गुजरने के बाद मुश्क की गिरफ्त में कोई फर्क पैदा ना हुआ, वह इब्न दुन्नी पे कैसे फर्क पैदा हो सकता है? पहचाने दुनिया कितना एक जैसे हैं, जहां पर इतना जमाना गुजर जाने के बाद यहां उसकी गिरफ्त में जो है कोई फर्क पैदा नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि हमारे और उनके इल्म में जो है कैसे फर्क पैदा हो सकता है। पहचाने दुनिया कितना हम एक जैसे हैं, कितनी हम आहंगी है हमारे दरमियान। हमारे यहां किसी तरह का कोई फर्क पैदा नहीं होता। और इमाम ने बताया कि देखो उनका इल्म भी देखो और हमारा इल्म भी देखो, यानी ख्वाब तुमने देखा है बता हम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने ख्वाब देख लिया, हमें कोई खबर ही नहीं है कि इत्तेफाक के तौर पर ऐसा हो रहा है कि हम उन्होंने भी 18 दाने दे दिए, हमने 18 दे दिए। नहीं, वो अब ख्वाब की बात थी, ये बेदारी की बात है। ख्वाब तुमने देखा है मगर खबर हमें है कि क्या देख कर क्या आए हो। तो ख्वाब के दावे कौन देगा? वो हम देंगे। हम है आलिम। भेजा और जिनके मारिफत हमारे ऊपर वाजिब करार दी है कि अगर इनके दामन को हम थाम ले तो मेरा अजीजों बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा अजीजों फिर मुसीबत दुनिया क्या है और फिर आखिरत का क्या खौफ है? फिर तो मेरा अजीजों यहाँ पर भी जो है बेड़ा पार है और वहां भी बेड़ा पार है। मेरा अजीजों ये मोहब्बत अहले बैत है कि जो हमें सहारा देती है। यही जिक्र अहले बैत है कि जो हर गम के जो है गम का इलाज है, हर गम का मदावा है, हर गम की दवा है, हर मरज की दवा है। ये जिक्र अहले बैत। मेरे अजीजों फख्र है इस बात के ऊपर कि हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद के दामन को थामा, हम उनका जिक्र करते हैं। मेरे अजीजों ये मुश्किलात, ये मुसीबतें क्या हैं? कुछ भी नहीं है। परवरदिगार ने अपने अजीम बंदों के सामने 2 रास्ते रखे हैं और वो एक उनमें से एक ये है कि कभी नेमत दे के इम्तिहान लेता है परवरदिगार, कभी नेमत को सल्ब करके इम्तिहान लेता है। मेरे अजीजों लेकिन जैसे जैसे इम्तिहान मोहम्मद वाले मोहम्मद ये ऐसे इम्तिहान किसी ने नहीं दिए। एक माँ के साले सवाब की मजलिस है। मेरे अजीजों ये माँ अजीम नेमत है परवरदिगार की, कीमती सरमाया है ये। मेरे अजीजों इस नेमत का अंदाजा उस वक्त होता है कि जब ये नेमत सल्ब हो जाती है, जब ये नेमत हमारे पास से चली जाती है, तब हम अंदाजा करते हैं इस नेमत का कि कितनी कीमती शय थी। मेरे अजीजों किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम तो सारे होते हैं, खुशियां भी होती हैं, गम भी आते हैं, मगर मेरे अजीजों बस निगाहें ढूंढती हैं तो किसको? माँ को तलाश करती है। निगाहें ढूंढती है किसको? बाप को तलाश करती है। मेरे अजीजों ये एक वजूद होता है मगर भरा घर होता है, लेकिन अगर ये न रहे तो ये भरा घर भी खाली नजर आता है। इतनी बड़ी नेमत। माँ बाप का बैठना ही बहुत बड़ी अजीम नेमत है। कभी भी वक्त पड़ जाता है तो मेरा अजीज इंसान आता है माँ बाप के पास, दूर भी होता है बच्चा तो फोन ही के लिए सही बात कर लेता है, माँ से बात करता है, मेरे ऊपर ऐसा वक्त है, परेशानी है, इम्तिहान है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा।
माँ दुआ करती है कि परदेश में मेरा बच्चा है, इम्तिहान दे रहा है, परवरदिगार मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। तो मेरा अजीजों, माँ बाप की दुआ परवरदिगार सुनता है। परवरदिगार ने रहमत का मजहर बनाया है इनको। परवरदिगार देखता है कि जब मेरे बनाए हुए ये दो अजीम शख्सियतें, ये माँ बाप की सूरत में, ये इतने मेरे बंदे के ऊपर मेहरबान हैं, तो जाहिर सी बात है मैंने तो इनको भी बनाया है, मैं तो इनका भी खालिक हूँ, तो मैं कैसे अपने बंदे को छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे अपने बंदे पर रहम ना करूँ। हाँ मेरे अजीजों, क्यों ना हो, जब आपका और मेरा ये हाल होता है कि जब ये नेमत सल्ब होती है तो फूट फूट के रोते हैं, तो जरा सोचें कि जहां कायनात का इमाम, जो महवरे कायनात हो, हुज्जत इलाही हो, जब उसकी माँ इस कायनात से रुखसत हुई, वो किस तरह से गिरिया की, उसने कैसे गिरिया किया माँ के ऊपर। ये वजह मेरे अजीजों कि जब इमाम हुसैन घर में दाखिल हुए, अम्मा कहाँ है, का हुजरे में है। मेरे इमाम हुसैन नजदीक गए, हुजरे का दरवाजा खुला, आगे बढ़े, देखा कि माँ जो है चादर ओढ़े हुए लेटी हुई है। इमाम को अंदाजा है, मेरे अजीजों ये इल्म रखते हैं, मालूम है कि चूंकि अभी कब्र रसूल से आ रहे थे तो आवाज आ रही थी कि सैयदा के यतीम बच्चे जा रहे हैं। मेरे लिए मालूम है कि माँ दुनिया से रुखसत हो गई। इमाम हुसैन आगे बढ़े, मतलब चेहरे को खोला, क्या देखा, मन का डला हुआ, माँ कायनात से रुखसत हो गई। मेरे अजीजों, सर को उठा के अपने जानों पर रखा और रखने के बाद कहते, अम्मा तुम्हारा लाल आया है, ए अम्मा तुम्हारा हुसैन आया है, ए अम्मा क्या हुसैन से बात ना करोगी, ए अम्मा अगर तुमने मुझे मेरी बात का जवाब न दिया तो मेरा दिल फट जाएगा, ए अम्मा अरे ये दिन देखने से पहले काश मर गया होता। लो मेरा अजीजों, इमाम आज़म आगे बढ़े, माँ के पैरों से अपने रुखसार को मलना शुरू कर दिया। ए अम्मा अरे तुम्हारा हसन आया है, क्या मुझसे बात न करोगी, ए अम्मा क्या मेरी बात का जवाब न दोगी, ए अम्मा ऐसा तो कभी ना हुआ कि तुम्हें हसन हुसैन ने पुकारा हो और तुमने बात का जवाब न दिया हो। ए अम्मा अरे तुम्हारा लाल पुकार रहा है। लो मेरे अजीजों, हुसैन ने सर को उठा के अपने दामों पर रखा और एक जुमला कहा, ए अम्मा आज की बात को याद रखिएगा, ए अम्मा आज आपका सर मेरे जानों पर है, ए अम्मा कर करबला के मैदान में, ए अम्मा जब मैं घोड़े से जमीन पे गिरूंगा, ए अम्मा मेरे सर को उठा के अपने जानों पे रख लेना। लो मेरे अजीजों, भाई का मर्तबा मौला इमाम अज़हर इमाम हुसैन मस्जिद की जानिब दौड़े। मौला कायनात ने आते बच्चों को देखा, इमाम समझ गए, बच्चे पैरों से लिपट गए, कहे बाबा अम्मा हमें छोड़ के चली गई। लो मेरे अजीजों, अली गश्ता के जमीन पर गिरे, घर में वारिद हुए, मेरे वसीयतनामे को निकाला, वसीयतनामे को पढ़ना शुरू किया। शहजादी ने लिखा था, ए अली गस्सिलनी फिल लैल, कफिलनी फिल लैल, दफिलनी फिल लैल, ए अली मुझे रात में गुस्ल देना, मुझे रात में कफन पहनाना, ए अली और जिन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया मैं नहीं चाहती मेरे जनाजे में वो शरीक हो, मेरे मरने की खबर उनको ना देना। लो मेरे अजीजों, जनाजा तैयार हुआ, अली ने अपने हाथों से गुस्ल कफन दिया, मगर तारीख में लिखा कि अली चीख मार के रोए। सलमान फारसी ने पूछा, बोला आपने तो इतने मार के सर किए, इतनी जंगे सर की, मगर किसी मंजिल पर आपको रोते हुए ना देखा गया। ए मौला आखिर ये कैसी मुसीबत थी कि आप चीख मार के रोए। मौला कायनात कहते हैं, ए सलमान तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं सैयदा को गुस्ल दे रहा था तो मैंने देखा सैयदा की पसलियां टूट गई। अरे सैयदा ने मुझसे कभी गम का इजहार न किया। लो मेरा अजीजों, जनाजा तैयार हुआ और तैयार करने के बाद सहने खाना में रख दिया गया और रखने के बाद कहते हैं, हाँ मेरी बेटी ज़ैनब माँ का दीदार कर ले, हाँ मेरी बेटी उम्मे कुलसूम माँ से मुलाकात कर ले, अब महशर में मुलाकात होगी। हाँ मेरे अजीजों, एक मर्तबा दोनों बेटी आगे बढ़ी, माँ के जनाजे से निपट गई। ए अम्मा खुदा हाफिज, ए अम्मा नाना से हमारा सलाम कहिएगा। लो मेरा अजीजों, जज़ाकल्लाह बल तमाम हो रही है मेरा अजीजों। एक मर्तबा मौला कायनात ने देखा, एक गोशे में इमाम हुसैन सर को झुकाए हुए खड़े हुए थे। मैं एक मर्तबा जुमला कहते हैं, हाँ मेरे लाल क्या वादा दीदार न करेगा, मेरे लाल इसके बाद में सर मुलाकात होगी। मैं एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं, बाबा एक बात का जवाब दीजिए। क्या पूछ मेरे लाल, क्या पूछना चाहता है? क्या बाबा बताइए, मैं अफजल हूँ या ईसा अफजल है? क्या मेरे लाल तू फखरे ईसा है, तू अफजल है? क्या बाबा मेरी माँ अफजल है या मरियम अफजल है? क्या मेरे लाल तेरी माँ अफजल है, तेरी माँ तो फखरे मरियम है? क्या बाबा मैंने सुना है
کہ جب عیسیٰ جب مریم دنیا سے گئی تھی تو مریم نے بندے کفن کو توڑ دیا تھا اور عیسیٰ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا. اے بابا، ارے جب مریم بندے کفن کو توڑ سکتی ہے تو کیا میری ماں فخر مریم ہو کر اپنے بندے کفن کو نہیں توڑ سکتی؟ مجھے جب تک ماں نہ بلائے گی میں ماں کا دیدار نہ کروں گا. اتنا سننا تھا، بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ نکلے، آ میرے لال میرے سینے. امام حسین آگے بڑھے اور ایک جملہ کہتے ہیں، اماں آج کی بات کو یاد رکھیے، آج آپ نے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں. اے اماں، ارے کل کربلا کے میدان میں جب میں آپ کو بلاؤں گا تو آپ کو آنا ہوگا. لو میرے عزیزو، حسین لاشے سے لپٹے، آواز گونجی، اے علی بچوں کو جدا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی. ملائکہ نے فوران مچا. علی نے بڑے پیار سے بچوں کو جدا کیا، مگر ہائے کربلا کا میدان، ایک بچی باپ کے لاشے پائی مگر ہائے رونے نہ دیا. گوشواروں کو چھینا گیا، کان زخمی ہو گئے، چہرے پر تماچے مارے گئے. اے بابا